can't stand. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج 2-3 معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، اور وہاں پہ جس قسم کی سپیچز ہوئی ہیں، خاص طور پہ حکومت کی طرف سے جو گفتگو سامنے آئی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کا معاملہ، پروونشل الیکشن کا معاملہ، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے قرار دے دیا ہے کہ 90 روز کے اندر لازماً کروائے جانے ہیں، اور اگر تاخیر بھی ہوتی ہے تو ایک غیر معمولی ہلکی پھلکی سی تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن جو پارلیمان میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں موجود ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. تو پہلا بنیادی سوال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے فیصلہ موجود ہے. کیا اس فیصلے کے خلاف پارلیمان آج کوئی اور فیصلہ سنا سکتی ہے؟ کیونکہ پارلیمان میں حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ ہوم منسٹر، انہوں نے یہی اندیا دیا ہے کہ ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. اس کی تمام توجیحات انہوں نے پیش کی ہیں جو کہ فلور آف دا ہاؤس پہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، اور آخر میں حکومت نے اس طرح سے سم اپ کیا کہ پارلیمان رہنمائی کرے کہ حکومت کو، اداروں کو کیا کرنا چاہیے. الیکشن ایک ساتھ کیوں نہ ہوں پورے ملک میں، پروونشل بھی اور جنرل الیکشنز بھی، قومی اسمبلی کے سارے ایک ساتھ ہوں. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے سامنے پارلیمان کھڑی ہو رہی ہے؟ کیا دو ادارے آمنے سامنے آ رہے ہیں، پارلیمان، سپریم کورٹ؟ کیا یہ آمنے سامنے آ رہے ہیں؟ کیا حکومت ان اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا باعث بن رہی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ اور الیکشن کے حوالے سے کس کا فیصلہ سپریم ہوگا، سپریم کورٹ کا یا پارلیمان کا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، ہمیشہ سے جنریٹ رہی ہے، اور آج بھی اس ڈیبیٹ پہ کچھ نہ کچھ جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کا حصہ نہیں ہے. تو ایسے میں جبکہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت، ایک بڑی پاپولر سیاسی جماعت، وہ جوائنٹ سیشن کا حصہ نہیں ہے، تو یہاں پہ ہونے والی ڈیبیٹ خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے، جس میں پی ٹی آئی ایک بڑی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، اس کی ایبسنس میں اس جوائنٹ سیشن کی پھر اہمیت کیا رہ جاتی ہے، پارلیمانی اعتبار سے اس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے، اس پر بھی سوال جواب کریں گے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا قرارداد میں، پارلیمان کی قرارداد میں کوئی ایسی چیز بھی آ سکتی ہے کہ جس میں مطالبہ کیا جائے، یا کم از کم کوئی اشارہ دے دیا جائے عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے کالعدم یا پابندی لگائے جانے کے حوالے سے؟ ان معاملات پہ بات کریں گے. اور عمران خان نے آج ایک بار پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار ہے. وہ بار بار روزانہ کی بنیاد پہ ہیمرنگ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ حکومت ان کے اس الزام کو، ان کے اس تحفظ کو، ان کے اس کنسرن کو سیریس نہیں لے رہی. آج بھی عمران خان نے کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ سی ٹی ڈی کی وردی میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں نامعلوم جو ان کو مارنے کی کوشش کریں گے. عمران خان نے یہ بھی الزام لگایا کہ پنجاب پولیس ان کو قتل کروا سکتی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. اس الزام کا ثبوت کیا ہے، پی ٹی آئی سے سوال کریں گے. اور عمران خان کے ان الزامات کو حکومت سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی، اس پر بھی سوال کریں گے. اور ایک اور اہم ایشو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی لابنگ فرمز، ان کی خدمات حاصل کرنے کے حوالے سے ہے. اب یہ لابنگ فرمز کیا خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کے تانے بانے کہاں کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ خاص طور پہ زلمے خلیل زاد کی مسلسل ٹویٹس آ رہی ہیں عمران خان کے حق میں. کیا زلمے خلیل زاد کا ٹویٹس کرنا، یا دیگر امریکن کانگریس مین کا ٹویٹ کرنا، یا کریگ مرے کا ٹویٹ کرنا، کیا یہ ٹویٹس پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، اس کے برابر کیا سمجھا جا سکتا ہے، یا حالات واقعی اتنے خراب ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی خدشات اور تحفظات پاکستان کی سچویشن کے بارے میں لاحق ہو چکا ہے؟ ان تمام معاملات پہ پروگرام میں آج بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوسچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی نمائندگی کریں گے علی گوہر بلوچ صاحب، مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں سے اٹھ کے آئے ہیں. شہلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر سرکردہ رہنما ہیں، سندھ میں وزیر بھی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، حکومت کی نمائندگی کریں گی. اور عالمگیر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے سرکردہ رہنما ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، چونکہ آپ کی پارٹی کے رانا ثناء اللہ جو کہ ہوم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک اسپیچ کی ہے اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں، حکومت نے اپنا مائنڈ تو
फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कौमी असेंबली पे रख दिया है कि वो किसी सूरत राज़ी नहीं है कि इलेक्शंस अर्ली करवाएं, प्रोविंशियल इलेक्शंस। लेकिन क्या इस सूरत में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी इस चीज़ का बाइस नहीं बन रहे कि आप लोग दो इदारों को आमने सामने ला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पार्लियामान को क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर रहे हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है इलेक्शंस करवाने के हवाले से, तो आप कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इलेक्शंस ना हो उस फैसले के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि पाकिस्तान को कानून और आइन से बाहर मतलब कोई फ़ैसला किया जाए या कोई मतलब ऐसा कदम उठाया जाए जो मावराए आइन हो, मावराए कानून हो। लेकिन यहाँ पर बड़े थोड़े टाइम में मैं 2-3 चीज़ें जो आज राना साहब की स्पीच के दौरान मैं भी उधर ही बैठा था असम्बली के अंदर, जिन चीज़ों को, जिन पॉइंट्स पर उन्होंने रोशनी डाली, वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इलेक्शन के हवाले से आपका क्वेश्चन है, तो उसमें नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि एक बुनियादी चीज़ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो 90 दिन का एक टाइम है आइन के मुताबिक, जो अभी भी डेट दी गई है वो 90 दिन से आगे की है, और इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। हम बासियत मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल पार्टी, हम इलेक्शन में उतर चुके हैं। हमने हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने कागजात जमा करवा दिए हैं, हमने उनके टिकट्स के लिए जो है एप्लीकेशन मांग दी है। हमारे अभी बोर्ड बन पार्लियामान में आप लोग क्यों बात कर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकते, इलेक्शन अर्ली नहीं हो सकते, क्यों बात कर रहे हैं आप? 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर नहीं, खौफ तो उन लोगों को है जो इलेक्शन चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। हमें खौफ नहीं है, सिर्फ चीज़ इतनी है कि हम ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन जिस तरह से कि कोई एक पार्टी फॉर एग्जांपल जीत जाती है, PMLN जीत जाती है सूबे का इलेक्शन, तो आपको याद होगा कि 2013 से लेकर जो 2018 तक का टेन्योर था, उसमें भी इमरान नियाज़ी साहब ने वो नताइज मानने से इनकार कर दिया था। और आज भी जाहिर है कि अगर इलेक्शन नून लीग जीत जाती है तो किसी के पास, किसी फॉरम के पास गारंटी है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब इस इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगे? 2013 का इलेक्शन भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया था, वो तो उनका एक जमहूरी हक है ना कि तस्लीम नहीं करते, एहतजाज करते हैं। नहीं, आप यही चीज़ है, ये लॉजिक नहीं आप देखें, नहीं ये लॉजिक ये नहीं है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि 2013 का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया गया था। पार्लियामान के जॉइंट सेशन में करारदाद आ सकती है, करारदाद आएगी, इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकती। उसकी वजूहात ये थी, मुझे इस सवाल का जवाब दें, फिर आगे बढ़ते हैं ना। उसकी वजूहात ये है, जॉइंट सेशन में करारदाद आने वाली है इलेक्शंस के हवाले से? मुकन्ना एक सुप्रीम इदारा है, इस टॉपिक पर बहस हो रही है, वो अपनी राय दे सकती है। जाहिर है कि और आज की स्पीच में काबिल जिक्र ये बात है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अदलिया को भी इन जो पॉइंट्स हमने उठाए हैं उनके ऊपर गौर करे, जिसमें ये भी था कि अगर आज हम एक मतलब है कि सूबाई असम्बली के करवाते हैं तो जो पार्टी जीतती है नेक्स्ट इलेक्शन में उधर वो नहीं होंगे, मतलब है जो निगरान हुकूमत नहीं होगी। जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो यकीनी तौर पर चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब है कि नहीं होना, ये आप बेसिक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के खिलाफ जा रहे हैं ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोस में इंडिया में वही हुकूमत रहती है, वहाँ केयर टेकर सेटअप का कोई तसव्वुर नहीं है, वही हुकूमत रहती है, उसके इख्तियारात कर्टेल कर लिए जाते हैं, इख्तियारात महदूद कर दिए जाते हैं, तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि उधर पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करते हैं। शैला रज़ा साहिबा, आप कह रहे हैं कि पार्लियामान में आज ये करारदाद आ सकती है कि इलेक्शन नहीं, करारदाद अभी आई नहीं है, आ सकती है। देखें, हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या शिकवा है? नहीं, देखें बात ये है, नहीं, मुझे इसका जवाब देना, मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या करारदाद आ सकती है इलेक्शंस के हवाले से आज जॉइंट सेशन? पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है ये एक सुप्रीम फोरम है, और यहाँ पर करारदाद जो भी हाउस आपस में बहस करने के बाद कोई हल तजवीज़ कर सकता है। जिसकी रोशनी में वो करारदाद सुप्रीम होगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होगा? फैसला अदलिया ने ही करना है, फैसला अदलिया नहीं करना है, लेकिन नेशनल असम्बली का ये कानूनी और आईनी हक है कि वो करारदाद ला सकते हैं। कौन सा ऐसा कानून है जो उनको रोकता है? ठीक है, अच्छा, कौन सा ऐसा कानून है जो आई हैव टू गो टू शैला रज़ा साहिबा और आलमगीर खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी जो जॉइंट सेशन है वो 27 मार्च तक जो है मुलतवी कर दिया गया है, और अभी आज तो करारदाद नहीं आई, तो आज तो आप लोगों ने अपनी जान बचा ली है। शैला रज़ा साहिबा, इलेक्शन के मामले पे पार्लियामान सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है? आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट और सुप्रीम आइन की तशरीह करके ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना। और
मैं बात पूरी कर लूँ। जी। और आइन बनाना ये पार्लियामेंट का काम है, उसको बनाना या रीराइट करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हाँ, लेकिन और तशरीह करना तो आइन सुप्रीम कोर्ट का काम है ना। और आइन की तशरीह करना उनका काम है। हाँ। अब एक पार्लियामेंट है जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ हैं और मिनिमम पॉइंट पे वो यूनाइट भी हैं। अब अगर एक सोच एक पार्टी में आ रही है या गवर्नमेंट के किसी साइड पे आ रही है तो बेहतर तरीका ये है हाँ। कि उसको पार्लियामेंट में लाया जाए। हाँ। और ये सवाल वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग वहाँ पे कानून भी जानते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी शख्सियात, उन सब से राय ली जाए। एक काम है उनका कि वो पार्लियामेंट में बात कर सकता है, पार्लियामेंट इसको रिजेक्ट कर दे इस बात को, लेकिन जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो मुल्क का एक सियासी तर्ज अमल है, नहीं नहीं, उसमें मैं आप कह रही समझती हैं हूँ कि आपका अगर कोई स्काइप बीच में बात डिस्टर्प्ट हो गया था। आप कह रही हैं कि पार्लियामान के इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को रिजेक्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर सके, ये कहा है आपने? अभी तो ये अमल ही नहीं शुरू हुआ कि इसके खिलाफ जाएं। अभी तो इस पे राय मांगी गई है और जो राय मांगी गई है तो इसको देखते हैं कि क्या आएगा। लेकिन जो भी फैसला करेगी लेकिन हुकूमत ने जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है अपना माइंड तो बता दिया ना। पार्लियामेंट है, हुकूमत ने अपना माइंड तो बता दिया ना कि आप लोग इलेक्शन अर्ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं करवाना चाहते। हमेशा बंद किया गया, जिसकी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर उसका काम करने की कोशिश की गई और की जा रही है अभी भी। तो पार्लियामेंट माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये इदारा है कि उसने कम से कम ये कोशिश तो की कि अगर हमारे किसी पार्टी के पास ये सोच आ रही है तो उसको बीच में लाया जाए। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ। माजरत के साथ इसी पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा है सिंध असेंबली भी, और इसी पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा है बल्दियाती इलेक्शन भी। लेकिन सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का जो हाल हो रहा है अभी तक, तो आप लोग अपना सिलेक्टेड और सिलेक्टिव किस्म का आप लोग अपना पार्लियामानी सिस्टम नहीं ला सकते ना। आप लोग अपना सिलेक्टेड मयार नहीं रख सकते। बल्दियाती इलेक्शन पे बात करना आसान है। बल्दियाती इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया हमने एक्सेप्ट किया। अब अगर जमाते इस्लामी अपने कैंडिडेट के थ्रू भी ऑब्जेक्शन ना लगाए, इलेक्शंस भी आपने करवाए अदालत के फैसले के तहत, इलेक्शन भी आप नहीं करवाना चाह रहे थे, के जरिए लगाए तो हम उस पे ऑब्जेक्शन कर सकते थे। उसमें कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं अपने रिजल्ट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में, शहरी जा रहे हैं। हमने फिर भी कहा कि इन्हें सुने। तो मैं नहीं समझती जो हारे हैं या जो जिनको अपने तवक्को के नताइज नहीं मिले वो गए इलेक्शन कमीशन में। हमने हर चीज मंजूर की है और वो भी कैंडिडेट नहीं गया है। राइट। सिंध हुकूमत की मसले को भी समझे, हमारा तरफ से मसला नहीं है। हमने तो कहा जो भी शहरी गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि कैंडिडेट आए। हम इस पे एतराज लगा सकते हैं लेकिन हमने नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, आलमगीर खान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगी, बल्कि मेरी ख्वाहिश भी होगी कि आप जल्द अज जल्द हमें वीडियो पे ज्वाइन कर लें ताकि डिबेट मजीद अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अली गौहर साहब की भी सुन ली, शहद रज़ा साहिबा की आपने सुन ली। पार्लियामान में कम से कम एक बात तो हो गई है, हुकूमत ने कहा है कि जी पार्लियामान राय दे हुकूमत को, इदारों को, कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। टाइम से मुराद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रोविंशियल अर्ली होने चाहिए या एक साथ जनरल इलेक्शन हो। अगर ये करारदाद आ जाती है, राय आ जाती है पार्लियामान की, इन राइटिंग आ जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके जवाब में क्या करेगी? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, एक तरफ पार्लियामान की एक राय या करारदाद आ जाती है। आपकी नज़र में कौन सुप्रीम है? और अगर पार्लियामान से ऐसी कोई राय या करारदाद आ जाती है तो फिर पीटीआई क्या करेगी? क्या उसको लेके भी उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आइन सबसे सुप्रीम है। और करारदाद आना, राय आना, उसकी एक सिंबॉलिक हैसियत होती है। लेकिन जब तक कोई कानून साजी ना हो, आइन में कोई तरामीम ना हो, तो तब तक आइन ही सुप्रीम है। और करारदाद को भी कोर्ट में, अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, उस पर बातचीत की जा सकती है। और देखिए इसमें लेकिन आइन के मुताबिक पार्लियामान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो भी डिस्कशन हो वो कहीं चैलेंज नहीं की जा सकती। इसमें कोई वो अभाम भी नहीं कि आइन की इंटरप्रिटेशन होनी है या उसके कोई 3-4 मायने निकलने हैं। और ये तो बहुत ही आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामान में जो भी डिबेट हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है।
देखिए मैं फिर से ये कहूँ, कानून साजी होना और करारदाद आना, एक राय आना, इसमें बड़ा फर्क है। नंबर एक। नंबर दो ये कि आइन में चीज बिल्कुल क्लियरली मौजूद है, उसमें कि 90 दिन में इलेक्शंस कराने, या तो ये आइन में तरामीम ले आए और उसके लिए कानून साजी करें, तो फिर अलग बातचीत है, अलग बात है। तो लिहाजा जहां तक बात है आइन की, तो 90 दिन में इलेक्शन कराने, और जो नहीं कराएगा लेकिन आलमगीर साहब, अगर इलेक्शन के हवाले से कोई करारदाद आ जाती है कि जी वो अर्ली नहीं हो सकती, तो जाहिर है उस करारदाद का भी एक इम्पैक्ट होता है ना। इलेक्शन कमीशन के पास एक एक्सक्यूज आ जाएगा, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के पास एक एक्सक्यूज आ सकता है, पार्लियामान की करारदाद की अपनी एक हैसियत तो बहरहाल मौजूद होती है, उसकी एक सियासी पार्लियामानी जमहूरी हैसियत तो है। आप कह रहे हैं कि वो करारदाद भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, या वो राय भी चैलेंज की जा सकती है? देखिए मैं फिर से ये कहूँ कि उस करारदाद का आना आया वो आइन से बालातर है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक सिंबॉलिक हैसियत होती है, वो आइन से बालातर नहीं है। ठीक है। आइन जब मौजूद है, आइन में एक चीज मेंशन्ड है, तो कोई भी करारदाद उससे आना उससे बालातर नहीं। करारदाद लेकिन गवर्नमेंट ये भी कह रही है ना, गवर्नमेंट कह रही है कि 30 अप्रैल जो है वो 90 रोज से ऊपर की तारीख है, तो वो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी आइन के अगेंस्ट तो जा रहे हैं। आपने आइन में जो एक आपने जो लकूना क्रिएट किया है वो तो आप ऑलरेडी अबूर कर चुके हैं। देखिए इसमें फिर से मैं कहूँ कि अब ये अदालतों का इम्तिहान है इस वक्त अदलिया का इम्तिहान है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या नहीं। और हमें बड़ा खुशाइन है कि उन्होंने ही तारीख दी और उन्होंने ही ये एक चीज स्टैब्लिश की कि जो आइन में मौजूद है उससे बाहर नहीं होगा कुछ, उससे कोई चीज तजावुज नहीं करेगी। और अगर कोई करता है तो फिर अदलिया का इम्तिहान है। और इस पर हमारी वकला बिरादरी भी बारहा कह चुकी है कि अगर इस तरह इलेक्शन में डिले हुआ या कोई इस तरह की हरकत की गई तो फिर वकला तहरीक भी चलेगी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एक तो मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन हो, सबको मुनासिब और मौजू और बराबर का मौका मिलना चाहिए, और अगर कोई बदनीयती हुई तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आलमगीर खान साहब कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, यही मुद्दा आज उठाया है हुकूमत ने भी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए नहीं है। आलमगीर खान साहब देखिए जहाँ तक बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो बड़ा क्लियर है जो लंदन प्लान पर काम हो रहा है कि, और जिसका इमरान खान पहले भी इजहार कर चुके, उनकी जान को खतरा है इस वक्त, उनको रास्ते से हटाया जाना चाहते हैं ये लोग, और उनको कत्ल करना चाहते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, इस हमारी जमात को कलअदम करना चाहते हैं, इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना चाहते हैं, और फिर ये मिल बांट के खाएंगे। तो इस तरीके की कोशिशें की गई और खान साहब ने इसका हमेशा इजहार किया, और जब उन्होंने कत्ल की अपने साजिश का इजहार किया तो कत्ल की अटेम्प्ट भी हुई कुछ ही टाइम बाद। तो ये भी चीज तारीख में मौजूद है। तो कहना ये जरूरी है कि देखें इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, और फिर अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक कौमी असेंबली की नशिस्तों पे इलेक्शन करा देते हैं। पहले 33 नशिस्तों के इस्तीफे कबूल करते, फिर 40, फिर मजीद, और वहाँ इलेक्शन भी करवाते, और उन्हीं सूबों में कराते जहाँ दहशतगर्दी के खतरात भी हैं, वहाँ माशी सूरत हाल भी वैसी है, और फिर सूबों के इलेक्शन कराने में इनको बुखार आ जाता है। तो ये दोहरा मयार जो है कौम देख रही है, और अदालतों ने भी इसी मयार को देखते हुए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख दी है। फेयर पॉइंट है। इसी सवाल पे जवाब लेते हैं हुकूमत की तरफ से, नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, जो आलमगीर खान साहब ने क्वेश्चन रेज किया कि आप लोग अपनी मर्जी के इलेक्शन तो करवा लेते हैं चंद नशिस्तों पे, उन्हीं सूबों में करवाते हैं जहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा भी है, अमन व अमान के प्रॉब्लम्स भी हैं, मईशत की बुरी सूरत हाल है, और प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाने में आपको प्रॉब्लम्स हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने नहीं करवानी, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। जहाँ तक असम्बली का रोल है, मुकन्ना जिसको बोला जाता है, वो अपना रोल अदा कर रही है। गवर्नमेंट के ही देखें मैं आपको देखें अगर इन हकायक पे बात करनी है तो हम 2-3 चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। 2013 में इमरान खान ने जब एक कैंपेन लॉन्च की और मुल्क में सियासी इंतशार फैलाया, हमारा इस शख्स के बारे में ये मौक़िफ़ है, और हमारी पार्टी का और हमारी लीडरशिप का, बल्कि इवन तमाम जो PDM की पार्टीज है उनका,
کہ عمران نیازی صاحب کا جو کردار ہے وہ ایک انتشار پسند شخص کا کردار ہے جو پاکستان کے خلاف سرگرم ہے، اور یہ اسی کردار کا حامل ہے جس کی کہ نشاندہی حکیم سعید صاحب نے کی تھی. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. 13 میں انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ عدالتوں میں گیا، ایک کمیشن بنایا گیا جس میں ہم نے فراخ دلی کا بحیثیت حکومت اس وقت مظاہرہ کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس الیکشن میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، وہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ قدم اس وقت بھی انہوں نے اچھا ادھر نہیں رکے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، اسمبلی کے جنگلے توڑے. وہ ٹائم کیا گزرا، پھر جب حکومت میں آئے تو اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمات بنوائے، تمام مخالفین کو جیلوں میں بند کروایا، آر ٹی ایس سسٹم بند کروایا. مجھے یہ بتائیں اگر یہی سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ بلدیاتی ادارے پنجاب کے بحال کر دی جائیں، مجھے یہ بتائیں پنجاب کے بلدیاتی ادارے کس آئین کے تحت توڑے گئے تھے؟ پھر جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا پھر اس پر کوئی عمل ہوا؟ عمل نہیں ہوا نا. 4-5-6 مہینے کے بعد جب سپریم کورٹ ان کے اوپر توہین عدالت لگانے لگی تو پھر اینڈ پہ جا کر 2 مہینے کے لیے انہوں نے ان کو چارج دی. ان کو چارج ہی نہیں دیتے تھے ان بلدیاتی اداروں کے ان لوگوں کو. اس کا مطلب اور میں ایک ریفرنس آپ کو، ایک اور بات میں آپ کو کوٹ کروں گا. جب پرویز الہی صاحب کا کیس تھا اس میں اسی بینچ نے جس متنازع فیصلے کے ذریعے پرویز الہی چیف منسٹر بنا تھا، انہوں نے کہا کہ نیا آئین لکھا جا رہا ہے. یہ انہوں نے اپنے کولیگز کے بارے میں کہا جو فیصلہ دے رہے تھے. ایک جج صاحب نے رائے دی کہ نیا آئین لکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں سے ماورائے آئین فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک فیصلے کی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، الیکشنز نہیں ہو سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اللہ کی ذات کی نہیں ہے. آج جو آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں جس طرح سے ججز کے بارے میں، مجھے یہ بتائیں وہ ایک نقوی صاحب ہیں جج جو ہیں معزز جج ہیں، ان کے بارے میں آڈیوز آئی، ان کے بارے میں ریفرنس جا چکا ہے. اس ریفرنس کی ہیئرنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ فیصلہ کر دے آڈیو ویڈیوز اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا. آج معزز چیف جسٹس نے عدالت میں بیٹھ کر اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ عدلیہ کو، اس کا مطلب ہے نہیں معذرت کے ساتھ میں آپ کے فورم کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں. اگر چیف آج اسمبلی کے فلور پر بھی یہ بات ہوئی ہے، بحیثیت رکن اسمبلی میں یہ بات کر رہا ہوں جس کا کہ ہم نے اسمبلی میں اس ایشو کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی شہرت پر قدغن لگتا ہوا عدلیہ پہ نظر آ رہا ہے تو جو نقوی صاحب والا ریفرنس ہے اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ اپنے اوپر سے ہٹائیں الزام، آپ اس کی ہیئرنگ کریں، 3 دن میں فیصلہ کر دیں. اگر نقوی صاحب بری ہوتے ہیں، اس میں بری الزما آپ قرار دیتے ہیں تو دیں فیصلہ. ان کا دیتے کیوں نہیں ہے فیصلہ؟ مسلم لیگ نون کا اس میں انٹرسٹ کیا؟ مسلم لیگ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے تفضات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ریلیف ملتا ہے قانون اور آئین سے ہٹ کے. ہمارے یہ تفضات ہیں کہ اگر ہمارے لوگ توہین عدالت کا کیس چلتا ہے تو چار لوگ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. عمران نیازی صاحب جاتے ہیں، ان کو ان سے پوچھا جاتا ہے 5 بجے آئیں گے، 3 بجے آئیں گے، کل آئیں گے. یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ کون سا رویہ ہے بھائی؟ مطلب کیا اس پر ہم بات نہ کریں؟ ہم خاموش ہو جائیں؟ کیا ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم موم کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم قانون پر بات کریں گے، ہم آئین پر بات کریں گے. عالمگیر خان صاحب جواب دیجئے اس کا. I had to go to شیلا صاحبہ، لیکن شیلا صاحبہ آپ کی اجازت سے عالمگیر خان صاحب جواب دیجئے گا اس کا. دیکھیں، ایک تو چیز یہ کہ انہوں نے اس وقت 143 کیس بنائے ہوئے عمران خان پہ، اور جہاں بھی عدالت میں حاضری کی بات ہوئی اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر چیئرمین عمران خان وہاں پہنچے. قانون کے آگے جھکاؤ دکھایا انہوں نے، وہ چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے رکاوٹیں پیدا کی گئی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عدالتی حکم کے باوجود زمان پار پہ چڑھائی کی گئی پنجاب پولیس کی جانب سے، پنجاب جو کیئر ٹیکر حکومت ہے ان کی جانب سے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں ان کا کام ہے الیکشن کرائیں گھر جائیں. یہ یہاں پر اس طریقے سے ایگزیکٹو آرڈرز دے رہے ہیں، اس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں جیسے کوئی الیکشن جیت کے آئی ہے، 5 سالہ حکومت ہے، اور اس طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں جو سمجھ سے باہر ہے. یہاں وہ ایک سیاسی
सेट अप नजर आता। भाई आपका सिर्फ काम ये है आप इलेक्शन कराएं, बस बात अच्छा, खत्म। इस पे जरा आलमगीर खान साहब इस पे जरा कमेंट कर दीजिएगा, जो ऑडियोज वीडियोस आ रही हैं जिसमें आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजेस के मुबैना तौर पे नाम सामने आ रहे हैं, उसमें अब नून लीग कह रही है कि जी आप जुडिशल रेफरेंस का फौरन जो है फैसला कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस पे क्या कहते हैं आप? एक तो ये ऑडियोज वीडियोज और ये मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा इस पे महारत हासिल है और बहुत ये इसी पे शायद इनकी सियासी बहरहाल मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा ऑडियो वीडियोस के मामले पे। ये ऑलरेडी एक बड़ा ही सियाह तरीन चीज है हमारे इस मौजूदा सियासत की, और वो सियासी जमातों के लीडरान की ऑडियोज वीडियोस आती, कौन निकालता, कौन से इदारे ये निकालते, तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये आती कहाँ से। ठीक है, शरा साहब इसी पे कमेंट कर दीजिएगा, ऑडियोज वीडियोस क्या ये आला अदलिया को बदनाम करने की एक साजिश है, क्या हुकूमत इसके पीछे है? नहीं, हमने तो चेयरमैन नैब के खिलाफ भी बहुत देखा, तो जिसको जिस पे बस चलाना होता है, मैं समझती हूँ कि उस जमाने में उस शख्स के खिलाफ आ जाती हैं, इससे आलमगीर इत्तफाक है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि इस वक्त चलाना चाह रहा है कोई और इल्जाम हुकूमत पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत खुद रिलीज करवा रही है आला अदलिया के जजेस के बारे में ऑडियोज वीडियोस? नहीं, ये नहीं कहना। अभी आपने कहा नहीं कि जिसकी हुकूमत में जिसके खिलाफ काम करना होता है आ जाती हैं वीडियोस। कर लें तो मैं क्या बात करूंगी, पहले आपने आलमगीर को दे दिया, अब आपको पूरा टाइम मिलेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, पूरा टाइम मिलेगा चला साहिबा ना, मैं फिर बेजारी का ऐलान करूंगी। नहीं, आपको पूरा टाइम मिलेगा, फरमाइए। उसी तरह मुंह करके बैठ गई थी कि भाई अगर आप ही लोग आपस में कर रहे हो। नहीं, फरमाइए। कि बात ये है कि ये बिल्कुल वाज़े तौर पे देखा गया कि जिस दिन चेयरमैन नैब ने कहा कि 9 दिन के अंदर मैं ये हुकूमत के खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं कि गिर सकती है, तो उनकी वीडियोस आ गई थी। तो अब ये कौन लाता है, क्योंकि उस वक्त उनको काफ़ी प्रेशर था चेयरमैन नैब पे, तो बड़ी उनके ऊपर आई और फिर वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे सकते थे कि मेरी ये आ गई। और अब जो है जब आ रही हैं तो किसी को नेड़े नेड़े आके सलाम करना होता है, किसी को ट्रक भेजना होता है, कोई जो है तशवीश ज़दा है कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो ये मसाइल हैं। तो जो सूरत हाल पे जिस जगह पे सियासत आ गई है वहाँ पे ऐसा ही होगा, क्योंकि जब सियासत में ये ऐलान हुए कि एक जर्नल ने कहा जिसकी वीडियो मौजूद है कि हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर इनको लेकर आए और RTS बिछाया गया, और अपनी पूरी गोल्डन डेज जो थे उसमें एक वजीर आजम ये कहता रहा कि सब मेरे साथ एक पेज में हैं और सबको एक इंतकाम की भट्टी में जो है वो डालता रहा। तो अब लोगों को शायद समझ आ रहा है कि बाकी भी क्या होना है। तो यहाँ पे जो इस वक्त हम चले थे, जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि असेंबली सेशन बुलाया है, जॉइंट सेशन, और जिसमें PTI का बाइकॉट है, PTI का बाइकॉट है, एक बड़ी सियासी जमात है, उसके बगैर फिर इलेक्शन इस जॉइंट सेशन की अहमियत क्या है? उनको किसी ने मना नहीं किया था, उन्होंने खुद असेंबली से इस्तीफे दिए, उनको तो हमने इस्तीफे बाद में मंजूर किए, उनका तो स्पीकर उसी किया ना जाए। और बल्कि ये जवाब पूछना चाहिए था, दुनिया में ये बात हो रही है कि एक असेंबली जिसने 99% लोग चाहते थे कि असेंबली ना टूटे, एक असेंबली के बाहर बैठे हुए शख्स ने जो है, एक ऐसे शख्स से जो बार बार कह रहा था कि असेंबली के 99% लोग चाहते हैं कि ना टूटे, उससे असेंबली तोड़वा दी अपना खिलौना समझ के। तो अब उसी असेंबली के लिए लोगों के ह्यूमन राइट्स के सवालात जाग उठे हैं। एक शख्स ने बाहर बैठे हुए तोड़वा दी और एक शख्स जब बाहर बैठ के कह रहा था कि फलां को सपोर्ट करो, तो वो काबिल कबूल नहीं था। तो अगर इसी तरह से फैसले आएंगे, फैसले अवाम की प्रॉपर्टी उस पर बात होगी। रही बात, आलमगीर साहब ने कहा कि इमरान साहब को हुकूमत मारना चाहती है। देखिए, इमरान साहब को मारने की जरूरत नहीं है, इस खौफ से कि उनको लग रहा है कि मेरे सर पे कहीं मौत है, वो खुद ही आधे मर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के लॉबिस्ट खरीदे और उन लॉबिस्ट की हिमायत जैसी उन्हें हासिल होने वाली हुई, उन्होंने साइफर की बत्ती को दोबारा कहीं से उस खत की बत्ती बना के फेंक दिया और वो
उस जनरल बाजवा को, जिसको वो एक और टर्म देने को तैयार थे। पहले उसके खिलाफ उन्होंने पूरी मुहिम चलाई और फिर अब उन्होंने अमेरिका को बरी करके लंदन आ गए। ये लॉबिस्ट वाला जवाब आलमगीर खान साहब से लेंगे, लेकिन शैला साहिबा हुकूमत संजीदा क्यों नहीं ले रही? अब पिछले 4 मिनट से आप जवाब दे रही है ना, मेरा सवाल ले लीजिए ना, हुकूमत संजीदा क्यों नहीं ले रही खान साहब के इस इल्जाम को या उनके इस कंसर्न को कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा? इसलिए नहीं ले रही कि कत्ल का हमला जो हुआ उनकी गवर्नमेंट में हुआ। अभी वो जत्थे लेकर आए अदालत में, हाँ। तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ कि बाजवा पे आपको इत्मीनान नहीं, आसिम मुनीर पे आपको इत्मीनान नहीं, पुलिस पे आपने शेयर किया, आपने ट्विटर पे शेयर किया गरीदा कि पेट्रोल बम फेंके गए। तो मुझे ये बताएं कि जब इलेक्शन होंगे तो इमरान साहब मुझे बताएं किसकी ड्यूटी लगवाएंगे? ऐसा उन्होंने आज बयान दिया कि वो साफ लग रहा था कि पीटीआई का ही हो सकता है बयान, कि सीटीडी के वो लोग खड़े थे जिनके नाम भी नहीं मालूम। भाई आपको कितने सीटीडी के एहलकारों के नाम मालूम है? कि मुझे मेरी जान को खतरा था, सीटीडी के ऐसे लोग खड़े हो गए जिनके किसी को नाम नहीं मालूम। तो आपको कितने पुलिस वालों के नाम मालूम है? कितने आप? तो एक शख्स जो है, जब उसको किसी पे एतमाद ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना पुलिस पे, ना फौज पे, ना पैरा मिलिट्री फोर्सेस पे, तो मुझे ये बताएं कि जब इलेक्शन होगा, सवाल ये है कि जब इलेक्शन होगा। शरा साहब, आपका स्काइप डिस्टर्ब हो चुका है। नाउ लेट मी गो टू आलमगीर खान साहब। आलमगीर खान साहब, ये बड़ा एतराज उठ रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे कि आप लोगों, एक तो अमरीकी आप लोगों का एक बयानिया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने आप लोगों की गवर्नमेंट को गिराई, लेकिन उसके बाद उसी मुल्क के आप लॉबिस्ट हायर कर रहे हैं और ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट्स। तो गवर्नमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि आप फॉरेन फंडिंग जमात हैं और ये फॉरेन एलिमेंट्स की मदद से आप पाकिस्तान में खाना जंगी करवाना चाहते हैं। आलमगीर खान साहब, एक तो चीज ये कि इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई इस बात को डिनाई नहीं करेगा। और जो हालिया वाकयात हुए, यानी जो जमान पार्क पे हमले हुए, खान साहब पे इस्लामाबाद में हमले वगैरह, जो लोगों को रोका गया, शुरका को शेलिंग की गई, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने खबर की है। बल्कि जब जमान पार्क पे इन्होंने बाकायदा अटैक किया तो उस दिन भी इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत की और दुनिया भर में वो रिपोर्ट हुआ, और वो जितने भी चैनल्स हैं। तो और सिर्फ इल्जाम ये है, पीटीआई पे इल्जाम ये लग रहा है कि आप लोग इंटरनेशनल लॉबिस्ट, अमेरिकन लॉबिस्ट हायर करके आप लोग पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस करवा रहे हैं। देखिए, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो फिर साबित भी कर दे, वो साबित कर दे कि हमने किसको लेकिन कहा, बयानात आ रहे हैं ना, ज़ल्मे खलीलजाद का बयान आ जाता है, क्रेग बरे का बयान आ जाता है, अमेरिकन कांग्रेसमैन के बयानात आ जाते हैं। अगर कोई वाकया रिपोर्ट हो रहा हो इंटरनेशनली तो उस पर डिप्लोमेट्स, फॉरेन पॉलिटिशियंस, वो उस पर, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वो उस पर अपना स्टांस देती है। अब टर्की में हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि ये सारे कनेक्टेड हैं सीआईए के साथ, और आपका कोई एक हुकूमत इसको साबित कर दे ना, हुकूमत फिर बता दे। ये जरूर होता है कि आपके लाइक माइंडेड लोग वो जिस भी जगह हो, वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हो, दीगर और ऐसे एक्टिविस्ट हो, आप उनसे अपने कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं लाइक माइंडेड। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट अली गौहर साहब, यस नो, आप इल्जाम साबित कर दें। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सीआईए से कनेक्टेड हैं, आप लोग साबित कर दें, कर सकते हैं? देखें, बात ये है कि नहीं, साबित ही है, ये जो ट्वीट्स आ रही हैं और ये जो सारा कुछ हो रहा है, और उसके बाद वो खान साहब आप साफ साइफर वाली बात क्यों नहीं करते? और दूसरी बात ये सबूत तो है ना। देखिए, एक इन्होंने बात की कि मुझ पर हमला हुआ और मुझे मारने का। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने रैली निकालनी होती है, जब जत्थे लेकर आते हैं, तब इनको खतरा नहीं होता, लेकिन जब अदालत में जाना होता है तो तब खतरा होता है। तो सबसे महफूज जगह तो जेल है, जिसकी 6 दीवारें होती है, अंदर कोई कातिल पहुंच नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के खर्चे के ऊपर इनको वो सहूलत भी अवेल करनी। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आलमगीर खान साहब, शायद रजा साहिबा। प्रोग्राम में यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक मजीद नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट में, बलोचिस्तान के हवाले से। बलोचिस्तान का अमन पाकिस्तान के दुश्मनों को हमेशा से खटकता है, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से वहां पे शरपसंदों, दहशतगर्दों का कलाकमा कर रहे हैं, माहिल बलोच के हवाले से एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इंतहाई अहम खबर के हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे, आपको आगाह करेंगे, आवाम के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। बलूचिस्तान एक तवील अरसे से वहाँ का अमन व अमान कंप्रोमाइज्ड है। उसकी वजह वसाइल का आवाम तक ना पहुँचना भी है, लेकिन इन चीज़ों को मिसयूज़ करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ एलिमेंट्स जो हैं, पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन जो हैं, वो शरपसंदों के साथ, दहशतगर्दों के साथ मिलके इन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को मैनिपुलेट करते हुए, इनको एक्सप्लॉइट करते हुए बलूचिस्तान के मासूम आवाम को निशाना बना रहे हैं दहशतगर्दी का, शरपसंदी का। और एक तवील अरसे से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को और वहाँ के वसाइल, वहाँ के मकामी लोगों को हकीकी तौर पे मिलें, इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्राइव कर रही हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट भी इसके लिए स्ट्राइव कर रही है, जिसमें कमियां खामियां डेफिनेटली मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो हैं, वो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करते हुए इन तमाम खामियों को, इन तमाम कमियों को मिसयूज़ करते हैं और बलूचिस्तान के अमन को, ताकि पाकिस्तान का अमन ख़राब हो सके, उसको तहस नहस करने की एक मज़मूम नाकाम कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश, नाकाम साजिश करते हैं। और ऐसी ही एक कोशिश की गई जिसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगी, जिसको नाकाम बनाया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, खासतौर पे CTD ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पाकिस्तान के हसास इदारे। सबसे पहले माजरत के साथ, सबसे पहले इन तमाम पाकिस्तान के हसास इदारों के, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिसमें CTD भी शामिल है, इनके तमाम जितने भी बहादुर ऑफिसर्स हैं, जवान हैं। अभी कल हमने देखा कि एक ब्रिगेडियर साहब की शहादत हुई है। इन सबको सलाम है, इन सबको कौम का सैल्यूट है। ये अपनी जान हथेली पे रख के पाकिस्तान का अमन उसको महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्वेटा में हुआ क्या है, दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। 17 फरवरी को CTD को खुफिया इतलात मिली कि माहिल बलोच को क्वेटा से गिरफ्तार कर लिया गया। माहिल बलोच, इस औरत के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद की गई। इसके शौहर का कलदम BLF से ताल्लुक साबित हुआ, जो कि माहिल बलोच ने एडमिट कर लिया। दौरान तफ्तीश माहिल बलोच ने एडमिट किया कि एक हफ्ते तक खुदकुश जैकेट उसके पास थी और ये खुदकुश जैकेट दहशतगर्द तंजीम BLF, बलोच लिबरेशन फेडरेशन के कमांडर ने फराहम की थी। ये माहिल ने एतराफ़ किया। कलदम BLF माहिल बलोच को मुख्तलिफ ज़राए से पैसे भी फराहम करती रही। अब माहिल बलोच का बैकग्राउंड ये है कि वो एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। केज के एक गरीब घराने में वो पैदा हुई और रियासत मुखालिफ माहौल में उसकी परवरिश हुई। तफ्तीश के दौरान माहिल बलोच ने अपने बाकी साथियों के हवाले से भी बता लिया। अब ये एक नया एलिमेंट है जो कि बलूचिस्तान में देखने में आ रहा है कि जहाँ पे शरपसंद दहशतगर्द बलूचिस्तान की मासूम ख़वातीन को उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और एक सॉफ्ट वेपन के तौर पे तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़। ये बलोच रिवायात के भी मुनाफी है, बलोच इक़्तिदार के मुनाफी है। ये पाकिस्तान की रिवायात, पाकिस्तान की अक़दार, ना सिर्फ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे बलोच रिवायात और इक़्तिदार के मुनाफी है, बल्कि ये तमाम इंटरनेशनल क़वानीन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुनाफी है, ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स के मुनाफी है कि आप ख़वातीन को जंग में इस्तेमाल करें अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपनी शरपसंदी के लिए, अपनी दहशतगर्दी के लिए। सो माहिल बलोच के बैकग्राउंड के हवाले से, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, जो शरपसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLF हो गई, बाकी तंजीमें होंगी, ये किस तरह से बलूचिस्तान में ख़वातीन को मिसयूज़ कर रही हैं, इसके हवाले से हम ज़रा बात करेंगे। बाबर यूसुफजई साहब जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर यूसुफजई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये माहिल बलोच कौन है, किस तरह इसका ताल्लुक डेवलप हुआ BLF के साथ, कैसे ये उनके हत्थे चढ़ गई और किस तरह से बलूचिस्तान में ख़वातीन को, जो कि तमाम अक़दार, तमाम बलोच रिवायात के मुनाफी है, किस तरह इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माहिल बलोच जो है वो बलूचिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान की बेटी हैं। हम बलूचिस्तान वालों की अपनी रिवायात, हम औरतों को ख़ास एहतराम देते हैं, ख़ास इज्जत देते हैं। वो दुश्मन जिसे बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिकस्त का सामना, उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। अब वो हमारी ख़वातीन और बच्चों को वरगला कर, उनकी जहन साजी कर कर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं एक सॉफ्ट वेपन के तौर पे, बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके केज से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी जब शादी 2014 में हुई तो शादी के बाद इन्हें पता चला कि जो इनके शौहर थे BLF बलोच साहब, उनका ताल्लुक एक कल अदम तंजीम से था। उनके शौहर एक फौजी ऑपरेशन में मारे गए। जब उनके शौहर मर गए तो इनको इनकी सास और ससुर अपने साथ कराची ले गए।
جب یہ کراچی گئی ہیں وہاں پر کل عدم تنظیموں نے اپنا وہ ایک شاطر دماغ استعمال کرتے ہوئے ان سے فیس بک پر ایک سوشل میڈیا ایپ پر رابطہ کیا ان سے اور ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. انہیں ہمدردیاں اپنائی گئیں کہ آپ کو ہم ہمدردی دیتے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ آئیں, اس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہوں. محل بلوچ جنہیں 7 فروری کی رات کو ہمارے سی ٹی ٹی نے سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے گرفتار کیا, انہوں نے تفتیش میں انہوں نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ کس طرح انہیں فوراً فنڈنگ کی جا رہی تھی, کس طرح انہیں پیسے بھیجے جاتے تھے ہنڈی کے ذریعے, ایزی پیسہ کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے. انہوں نے ان سب چیزوں کا اعتراف کیا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح عورتوں اور بچوں کو اب ہمارا شاطر دشمن پاکستان کے خلاف, بلوچستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اچھا بابر صاحب, یہاں پہ دو تین چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. ایک تو ماہل بلوچ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے, پسماندہ علاقے سے, آپ نے خود بتایا. بلوچستان کا یہ بڑا پرابلم ہے, غربت اتنی زیادہ ہے, پسماندگی اتنی زیادہ ہے, وسائل سے محرومی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے معصوم لوگ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں شر پسندوں کے ہاتھوں, شاطر دشمنوں کے ہاتھوں. اس کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے حکومت کو اور ریاست کو؟ اور پلس یہ جو اب ایک سافٹ ویپن کے طور پہ ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے پاکستان کے دشمنوں نے کہ خواتین کو اور بچوں کو ایکسپلائٹ کریں, ان کو یوٹیلائز کریں شرپسندی میں, دہشت گردی میں, اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت اور ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ غریدہ, اس سے پہلے میں آپ کو صرف تھوڑا سا اپنی بات کمپلیٹ کروں گا. محل کو جس خودکش حملے کے لیے یا جس خودکش پلان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, اس میں بھی ان کا ٹارگٹ یہ تھا کل عدم دہشت گرد تنظیموں کا, بی ایل ایف کا, ان کے لوگوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ انہوں نے معصوم بلوچستان کی خواتین اور بچوں پر ہی اٹیک کرنا تھا. کسی تقریب میں, کسی شاپنگ مال میں یا بازار میں جا کر انہی معصوم ایک بلوچ معصوم خواتین سے دوسری بے گناہ معصوم خواتین کو انہوں نے مروانا تھا. حکومت بلوچستان نے اس حوالے سے ڈیفرنٹ پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں. ہم اپنی خواتین کو, بچیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے اویئرنیس کے سیشنز ہم شروع کر رہے ہیں. ہم انہیں اویئرنیس دے رہے ہیں. اور اسٹیٹ سے, وفاقی حکومت سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری بچیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو وفاقی یونیورسٹیز میں, پنجاب کی یونیورسٹیز میں, کے پی کے اچھی یونیورسٹیز میں داخلے دیں, انہیں روزگار کے مواقع فراہم کریں. کیونکہ جو بزدل دشمن ہے ہمارا, آپ نے دیکھا کہ اس نے 1 سال پہلے بلوچستان کی ایک بچی کو, شالی بلوچ کو, اس کی ذہن سازی کر اسے استعمال کیا. اور محل نے اپنی انویسٹیگیشن میں بتایا ہے کہ جس طرح اسے شروع میں انہوں نے رابطہ کیا, رابطے کے بعد یہ اسے صرف ان کے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے اس میں لے کر جاتے تھے. مسنگ پرسنز کے پروٹیسٹ میں اس کو لے گئے, وہ اپنی تنظیمی کارروائیوں میں اسے ایکٹیو کر دیا, روڈ بند کروا دیا, پروٹیسٹ کروا لیا. بعد میں اسے اتنی ذہن سازی کی گئی کہ اس کے دماغ میں, اس کے دل میں پاکستان سے نفرت بھر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ آپ نے جا کر خودکش حملہ کرنا ہے یا آپ نے فیسیلیٹیٹر بننا ہے. آپ نے بلوچستان میں جو فورسز ہیں وہ آپ کی دشمن ہیں, بلوچستان کی جو ترقی پسند قوتیں ہیں وہ آپ کی دشمن ہیں. اس کو اس طرح سے پورا اس کا ایک برین واش کیا گیا اور اس کو اس طرح سے اس چیز کے لیے تیار کیا گیا. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے ہی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹیلیجنس آفیسر پکڑا گیا, کلبھوشن یادو, ایک سرونگ آفیسر پکڑا گیا. اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ بلوچستان کا امن و امان خراب کرنا ہے, ہمارے سی پیک کو سبوتاژ کرنا ہے. اور ابھی حالیہ میں آپ کے پروگرام سے بتاتا چلوں کہ ہم گوادر ایئرپورٹ کو فنکشنل کرنے جا رہے ہیں, اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اور گوادر ایئرپورٹ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم اسے فنکشنل کریں گے. اور ریکوڈک کا جو معاہدہ ہے وہ مائننگ کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے. آج تک مائننگ ہسٹری میں اتنا بڑا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. تو دشمن کی کوشش ہے کہ وہ بلوچستان کو ڈسٹرب کرے, وہ پاکستان کو ڈسٹرب کرے, کیونکہ ہم جیوگرافکلی لیکن بلوچستان کے مقامیوں کو, بلوچوں کو یہی شکوے شکایات ہیں کہ اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں جو پاکستان کے لیے گیم چینجرز ہیں, لیکن بلوچستان کے ان وسائل کا رائٹ فلی جو حق ہے وہ وہاں کے مقامیوں کو نہیں مل رہا. تو اس کنسرن کو, اس گریونس کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ریکارڈنگ کا حالیہ ہماری صوبائی حکومت نے معاہدہ کیا ہے اس کا بہت بڑا شیئر بلوچستان کو مل رہا ہے. بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے, بلوچستان کے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. لیکن جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں, جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, وہ ہمارے معصوم لوگوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اب کیونکہ ان کے یہ چیپ ٹیکٹرز, ان کی یہ سازشیں ہمارے نوجوانوں پر نہیں چلتی. ہم نوجوانوں کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز کرواتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی ورکشاپس کرواتے ہیں. ہماری فورسز کی بڑی قربانیاں ہیں بلوچستان کے لیے.
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने अटैक्स हुए हैं, उनकी इतनी शहादतें हुई हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन लोग हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब ये बुज़दिल दुश्मन ने एक शातिराना चाल चली है, ये अब हमारी खवातीन और बच्चों को अटैक, लेकिन वो भी नाकाम हो रही है, वो भी मुसलसल नाकाम हो रही है और ये चाल भी कभी कामयाब नहीं होगी। बाबर यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow, inshallah, at 8 o'clock. Allah Hafiz.